Now we are moving to the second last session, and for that I invite Dr. Priyanka Shinde Madam, Department of Rachna Sharir, BSDT Ayurved Mahavidyalay, Wagholi, to coordinate a session. Thank you. A very good afternoon, everyone. I, Dr. Priyanka Shinde, welcome you all for the next session. The speaker for our next session is Dr. Chandrakumar Deshmukh sir. I welcome you, sir, on the dais. The chairperson for the next session will be Dr. Digambar Dipankar sir. I welcome sir on the dais. The co-chairpersons will be Dr. Praveen Sawant sir and Dr. Madhavi Mahajan ma'am. I welcome you all on the dais. I will be introducing our speaker in brief. Today we have with us Dr. Chandrakumar Deshmukh sir. He is a specialist in Agni Karma and Viddha Karma. He is a student and follower of Dr. R.B. Gokte sir. He has conducted more than 200 workshops in and outside of India. His research work on autism and cerebral palsy is well known. He is consultant at Shri Vishwamurti Ayurved Chikitsalaya and R.B. Gokte Memorial Hospital. Every Wednesday, he offers his service at Dehu at Shri Santa Tukaram Maharaj Gatha Mandir, where he treats more than 200 patients by Viddha Karma. When we think about Agni Karma or Viddha Karma, the first thing that comes to our mind is pain management. But sir has treated cases of infertility, cerebral palsy, and autism with Viddha Karma. He also specializes in Uttar Basti and Ayurvedic IUI technique as well. Every year, more than 5,000 students come to learn Viddha Karma and Agni Karma from sir. At any time of the year, we can find minimum 50 students in his clinic. I welcome you, sir. In addition to that, he has also a YouTube channel where he conducts Vagbhat Vachan thrice a week. I missed that. Now I will be introducing chairperson, Dr. Digambar Dipankar sir. He is MD in Kai Chikitsa from BHU. Currently, sir is working as a professor in Kai Chikitsa department at D.Y. Patil College of Ayurveda and Research Center, Pune. He is PG and PhD guide. He is founder and owner of Snehadeep Ayurveda and Panchakarma Center, which has 2 branches at Pimpri Chinchwad. He has visited European countries for consultation and lectures on Ayurveda in 21 years of his clinical practice. He has published more than 32 research papers till now, and some of them are in Scopus, Web of Science, and PubMed too. He is a BOS member for clinical subjects. I welcome you, sir. We have as co-chairperson Dr. Praveen Sawant sir. Sir is MD and PhD in Kai Chikitsa. Currently, he is working as associate professor at NIA Jaipur. He is PG and PhD guide. He had special OPD as obesity consultant at Bharati Vidyapith, Pune. His clinical experience is more than 24 years. Sir has published more than 30 papers in national and international journals. He is considered as an expert in Medorog and Vatavyadhi Chikitsa. In addition to that, he is geriatric. He is considered an expert in geriatric and Ayurvedic Rasayan Chikitsa too. He has completed research projects like clinical study of Mustakadik Vatha Ghanavati in management of Sthaulya in 2015, efficacy of Vangamitra Yoga in management of diabetic neuropathy, which was funded by BVDU. Our next co-chairperson is Dr. Madhavi Mahajan ma'am. Ma'am is MD Kai Chikitsa and a PhD holder. Ma'am has gold medal. Ma'am has received gold medal for her thesis titled Efficacy of Jalaukava Charan in Sandhi Shotha and Sandhi Shula. Ma'am has a teaching experience of more than 23 years. She is PG and PhD guide. She has organized and participated in social awareness programs regarding geriatric diseases, lifestyle disorders, cardiac diseases. She was ICU coordinator at BVDU during COVID, and currently she is running a post-COVID OPD successfully.
She is also an in charge at the geriatric ward. She has published more than 34 research papers in PubMed, Scopus, Web of Science, etc. She is co-editor at Dirghayu International Journal. She has wrote a chapter in book Basti Chikitsa in Ayurveda. She has been a principal investigator and co-investigator at Bharati Vidyapit College of Ayurveda. I will be listing just a few because she has been principal at many research works. Few of them are evaluation of the efficacy of pomegranate effervescent granules in the management of acid peptic disorders, an open-label multicentric prospective clinical study which was sponsored by MHR Government of India, assessment of efficacy of Vidaryadi Ghruta and resistance exercise on muscle health in sarcopenia. I welcome you all, and now I request our speaker to please start with his session. Thank you. Thank you very much, Ayurveda teachers and all the students for inviting me here. सीधा मैं टॉपिक शुरू करता हूँ हमारा विद्याकर्म एंड अग्निकर्म। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्याकर्म और अग्निकर्म 2015 के बाद वैद्य राबा गोगटे सर जाने के बाद हमने शुरू किया है। एंड अभी तक जितने भी लेक्चर्स और कार्यशाला हुई है, न मम एतत्, मेरा कुछ नहीं है, इस स्वभाव से मैं हमेशा जाता हूँ और आज भी उसी स्वभाव से सारे टीचर्स लोगों के सामने विद्याकर्म और अग्निकर्म एज इट इज़ मैं बताना चाहूँगा। वैद्य राबा गोगटे सर जिनके यहाँ से जिनको हम ओरिजिन मानते हैं विद्याकर्म और अग्निकर्म का, और सर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उसमें से विद्याकर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करता है। सर जाने के बाद गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन शुरू हुआ और वहाँ से हर एक काम करना, प्रैक्टिकली काम करना और बुक में लाना, ये बातें शुरू हो गई। यूट्यूब में जैसे मैडम ने बताया वैसे भी शुरू हो गया। सर के नाम पे हमने पेटेंट शलाका भी ली है सर को एक ट्रिब्यूट के लिए। लेकिन जब से विद्याकर्म और अग्निकर्म शुरू किया है, गुरु के बिना कुछ नहीं होता और आप सब गुरु हो और आपके हाथ से अनेक शिष्य बनते हैं। कभी कभी आपको भी पता नहीं होता। कापटे सर यहाँ पे बैठे हैं, कापटे सर ने भी हमें आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में सिखाया है। तो ये जो भी है सब आपके लिए है। आयुर्वेद के लिए जो जब भी हम काम करते हैं तो बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, ये हमें प्रैक्टिस में मिलता है। तो दोपहर 12 बजे से रात 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली ओपीडी रन होती है आयुर्वेद की, और डेली मोर देन 250 पेशेंट एट चिंचवड एंड मोर देन 100 पेशेंट एट गोगटे मेमोरियल हॉस्पिटल जो सर का क्लिनिक है वहाँ पे हम चलाते हैं। और लास्ट 11 साल से हम विद्याकर्म और अग्निकर्म पे काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो विद्यार्थी जो रहते हैं बैड फाउंडेशन से वो गुड फाउंडेशन में आना चाहते हैं, और ऐसे आते समय उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद जो है गुरु शिष्य परंपरा से सीखा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं। तो वैसे ही 2012 में सर के पास आने के बाद पहला विद्याकर्म गोगटे सर ने दिया। उसके बाद में एक्यूरेसी के पीछे जाने का महत्व सर ने बताया, क्योंकि जब सर के पास सीखने के लिए विद्यार्थी आते थे तो सिर्फ महीने में 12 दिन मिलता था, और 12 दिन में जितना सीखना है उतना सीखो, और आगे जाके परफेक्शन के लिए हमें काम करना पड़ता है। गोगटे सर जाने के बाद समर्पण करके उसके पीछे हम लगे हैं, और अभी तक जितना भी हो सके उसके पीछे काम करते हैं। आयुर्वेद के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सारे टीचर लोग हो, आप सबको सिखाते हो, लेकिन आयुर्वेद अभी बहुत अट्रैक्टिव फील्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड बन चुकी है, ऐसा मैं कहूँगा। सीपी आईसीयू में आयुर्वेद होने लगा है, और आईसीयू जैसे केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो वो काम करने लगे हैं। जैसे कि कोविड के बाद कंडीशंस आती है और आयुर्वेद विद्याकर्म और अग्निकर्म हम आईसीयू में काम करते हैं और वहाँ पे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें केसेस मिलते हैं विद द फैक्ट्स, जहाँ पे मॉडर्न का इन्वेस्टिगेशंस होगा, मॉडर्न के डॉक्टर देखेंगे और आयुर्वेद की चिकित्सा होगी। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है। आईसीयू में बस्ती देने से लेके आईसीयू में अग्निकर्म विद्याकर्म करने तक सारी चिकित्साएं हम करते हैं।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ा है और आज तक एविडेंस बेस्ड, जैसे अभी आपने देखा होगा शाहने सर का, कि एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद मानते हैं लोग और वो हम दिखाना चाहते हैं। ये सारा दिखाते समय एक ही मैं बताना चाहूँगा कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। धैर्य, बुद्धि से विचार करना और आत्मादि विज्ञानम, ये हमारे मन के दोष दूर करने के लिए काम में आ जाएंगे और विद्ध कर्म समझने लगेगा। विद्ध कर्म, व्हाट इज विद्ध कर्म? इट इज कंसिडर्ड एज पेन मैनेजमेंट। अभी तक समझा जाता था कि विद्ध कर्म जो है सिर्फ पेन मैनेजमेंट होता है, और पेन मैनेजमेंट में अलग अलग प्रकार के वर्णन आए हैं। हरित संहिता में वर्णन आया है कि एक भगवान श्री शंकर जो है उन्होंने ध्यान पे थे और वहाँ पे तारकासुर व्यक्ति आया था और उसका वध शंकर के पुत्र से ही होगा। तो हमें पता है कि कामदेव की एंट्री हो गई वहाँ पे और कामदेव को मारने के लिए शूल फेंका गया। हरित संहिता में यह बताया गया है कि वो शूल का भय प्राप्त होके उन्होंने विष्णु तनुन प्रविष्ट, विष्णु के शरीर में प्रवेश किया और उसके बाद में विष्णु ने हुंकार करके वो कामदेव को पृथ्वी पे फेंक दिया और वो हुंकार से शूल की उत्पत्ति हुई और तभी से शूल जो है नोकली चीज़ों से डरता है, ऐसा वर्णन हरित संहिता में मिलता है और विद्ध कर्म की उत्पत्ति वहाँ से होती है। हम ग्रंथ देखते हैं, ग्रंथ में संसर व्यास वेद स्वाप साधुरुक्तोद भेदनम संगांग भंग संकुच वर्तहर्षण तर्शनम कंप पारुष शोषिर शोष स्पंदन वेष्णम, ऐसे बहुत सारे हमें लक्षण मिलते हैं। ये बेसिकली अंडर पेन मैनेजमेंट आ जाता है। तो शूल में जो हमें चिकित्सा दी है, शूल प्रशमन गण, अंगमर्द प्रशमन गण, वेदना स्थापन गण, ये प्रैक्टिकली हम जब पेशेंट को इस्तेमाल करते हैं तो पेन में हमें इतना बेसिक हमें मिलता नहीं। तो इसके लिए फ़ायदा में आता है मर्म। मर्म जो है हम प्रैक्टिकली जो देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट सीखते हैं और पीजी में भी वही मर्म सीखते हैं, लेकिन वो फिर से भूल जाते हैं, प्रथम ईयर का ही हो जाता है मर्म। और हमें बहुत सारे ऐसे लिटरेचर मिलते हैं, मर्म में प्राण रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भावनाएं रहते हैं, स्नायु मर्म रहते हैं। तो ये मर्म मीन्स क्या, मैं मेरा ग्रह, आपको सारा थ्योरी पता है और आय से लेके बोन्स तक सारे जो हमारे ऑर्गन से मर्म के अंदर आते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, सोम मारुत तेजांसी, सोम कफ वायु पित्त सत्व रज तम मन के दोष गुण, ये सारे मर्म के अधिष्ठान पे रहते हैं। तो मर्म का महत्व हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्म का रक्षण करना हमेशा बताया गया है। जैसे लेके महाभारत से लेके सारे युद्ध में या आयरन मैन हो, अभी तक सारे जो है पुराण में मर्म का संरक्षण बताया गया है। मर्म को ऐसी जगह बताई गई है कि यहाँ पे प्राण तिष्ठित है और मारयन्ति इति मर्माणि। तो मर्म का महत्व बहुत अच्छी तरह से आया है पुराण में, कवच कुंडल से लेके सारी जगह पे मर्म का वर्णन आया है। भीष्म पितामह पढ़े थे जिनको इच्छा मरण था और उनको शैया पे पड़े थे, शर शैया पे पड़े थे और युद्ध खत्म होने के बाद सारे लोग आए, पांडव आए, उन्होंने कहा आपका ज्ञान हमें दीजिएगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं दूंगा ज्ञान, लेकिन ये जो शरशैया है इसमें से जो शिखंडी के बाण है आप निकालो। तो शिखंडी के और अर्जुन के बाण इसमें फ़र्क नहीं समझता था क्योंकि शिखंडी के बाण पिंक और अर्जुन के काले ऐसा होता नहीं था, तो सेम ही बाण रहते थे। तो ऐसे समय में भीष्म पितामह ने ही बताया कि न एतत् बाणः शिखंडिनः, ये बाण शिखंडी के नहीं है क्योंकि इसको मर्म का ज्ञान नहीं था। अर्जुन के बाण जो मर्म पे है 107 जो बाण है आप रहने दीजिएगा, बाकी सारे बाण निकालो। तो तब से मर्म का महत्व हमारे यहाँ पे है। आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि क्षिप्रा जो नदी है उसके बाजू में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उनको जो बाण लगा था वो क्षिप्र मर्म पे था। क्षिप्र मर्म क्या है? कालांतर प्राण मर्म है। अंगुष्ठांगुले मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकर्म मरणम च। तो भगवान श्री कृष्ण को आक्षेपक हो रहे थे, ऐसे हमें सारे वर्णन मिलते हैं। तो ये जो है विद्ध कर्म ये मर्म के अनुसार आया है, मर्म के ऊपर विद्ध कर्म नहीं आया है। ये मर्म के ऊपर इतना 2 अंगुली, ये नीचे 2 अंगुली, नासाग्रे विदुर मर्म के ऊपर 2 अंगुली, ऐसे ऐसे सारे जगह पे मर्म का वर्णन, विद्ध कर्म का वर्णन आया है। कहाँ आया है? अथा तो शिराव्याध विधि अध्यायम व्याख्यास्याम, अग्निकर्म का वर्णन सूत्र स्थान में अथा तो अग्निकर्म विधि अध्यायम व्याख्यास्याम। सुश्रुत संहिता में विद्ध कर्म पेन मैनेजमेंट के लिए और डिसीज मैनेजमेंट के लिए, ऐसे दोनों भी आया है। तो यहाँ पे
अष्टविध शस्त्र कर्म आहे, उसमें छेदन वेदन लेखन वेदन ऐशन आह्वान विश्रावन और सीवन है। तो वेदन जो है टू पंक्चर है और उसके लिए अलग अलग प्रकार के शस्त्र आए हैं, कुठारिका व्रीहिमुखा आरा वेतस और शुचि आया है। चरक संहिता में भी अर्श चिकित्सा में अर्श के लिए बार बार वेदन करके रक्त निस्रावन करने के लिए आया है। वात रक्त में भी वेदन कर्म आया है। तो ये ग्रंथ में बहुत अलग अलग प्रकार से दिया है। आज हम वेदन कर्म के लिए 2 नीडल इस्तेमाल करते हैं, एक है 26/2 नंबर की और दूसरी है नीडल 24 नंबर की। यही क्यों? क्योंकि योगाभ्यास करके ये पता चला है कि जो अंगुली प्रमाण हमें बताए गए उनके अनुसार सारा कर्म किया जाएगा। अंगुली प्रमाण देखते समय चतुर अंगुली अलग अलग प्रकार से ग्रंथ में जो वर्णित आया है वो अंगुली प्रमाण निकाल के हमारे ग्रंथ में अलग अलग प्रकार के हमें वर्णन मिलते हैं। अर्ध अंगुली, 1 अंगुली, 2 अंगुली, वैसे ही। तो अर्धव्रीहि विद्ध मांस त्वक स्थानी, मांस स्थानी 1 व्रीहि विद्ध और अस्थि स्थानी अर्धव्रीहि, ऐसा विद्ध वेदन कर्म आया है। तो ये व्रीहि मीन्स क्या? एक चावल का दाना है, उसकी प्रॉपर उसकी साइज की ये नीडल होती है, इसलिए यही नीडल हम इस्तेमाल करते हैं। और यही नीडल जो है परपेंडिकुलर टू द स्किन हमें इस्तेमाल करनी होती है और ये हमें विद्ध कर्म में लाभदायक देती है। अगर पेशेंट बड़ा है तो हम 24 नंबर की नीडल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात हमेशा बताता हूँ कि विद्ध कर्म इज नॉट अ पॉइंट ट्रीटमेंट, इसका पॉइंट कहाँ है उसका पॉइंट कहाँ है, ये नहीं है। एक यहाँ पे देखिएगा, तत्र पाददाह हर्ष चिप्प विसर्प वात शोणित वात कंटक विचर्चिका पाददारी प्रभुत्व क्षिप्र मर्मनोपरिष्टा द्वय अंगुले। एक यहाँ पे देखिएगा विसर्प आया है। विसर्प मीन्स हर्पीस जैसा कोई व्याधि है, एकदम रात में नहीं था सुबह तक आ रहा है, सर्पन हो रहा है। तो ऐसे व्याधि में हम वहाँ से जलोका करते हैं, लेप करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं ग्रंथ ने बताया है कि क्षिप्र मर्मनोपरिष्टात वेदन कर्म करना है। उरुमूल में करना है तो गलगंड में करना है, अपची में इंद्रवस्ते के अधस्तात करना है। तो ये बातें हैं। यहाँ पे पंखा है, वहाँ पे बटन है, यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे बटन है। शरीर में शरीर रचना ऐसी ही बताई गई है। तो ये ध्यान रख के अगर हम चिकित्सा के पीछे जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से मिलेगा। ये है हमारी विद्ध कर्म की नीडल जो हम इस्तेमाल करते हैं। अग्निकर्म, अग्निकर्म अत्यग्रे शूले दहेत, दाह चिकित्सा अग्नोर्भु चिकित्सा अत्यग्रे शूले गहेत शस्त्र क्षाराग्नि, ऐसा हम देखते हैं और ये सारी अलग अलग बातें हम बताते हैं। अग्निकर्म के इंस्ट्रूमेंट विद्ध कर्म जैसे ही है। विद्ध कर्म का इंस्ट्रूमेंट एकदम से 70 रुपये में 100 मिलते हैं। तो अग्निकर्म के शलाका एक बार बना के लेंगे तो वो शलाका जो है हमें जिंदगी भर काम में आती है, इतना है। तो ये सुवर्ण शलाका जो है 14 कैरेट की होती है। 18 कैरेट का गोल्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 mm थिक होती है सुवर्ण शलाका। इसका जो पॉइंटेड एंड है वो इम्पोर्टेंट होता है। रौप्य शलाका भी हम वैसे ही बना सकते हैं। ताम्र शलाका हम राउंड बनाते हैं, वो अलग अलग टिश्यू पे जहाँ पे वलय मसल होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नाग शलाका जो योग रत्नाकर ने बताई है वो सर्वनेत्र रोग हरी बताई गई है। तो ये सिर्फ मात्र उसके प्रतिसारांश से सर्वनेत्र रोगा शम्यंती ऐसा वहाँ पे वर्णन आया है। तो नाग शलाका ऐसी हम बनाते हैं। शलाका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो शलाका को चलाने वाले यंत्र जो है, प्रधान यंत्र जो है हस्त, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मृत्तिका, हरिद्रा, लोह शलाका हम कॉलेज में जो दिखती है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स में आपको मर्म पे नहीं करना है, वर्षा भरे निशागम में नहीं बताया गया है। एंड डोंट यूज इफ यू डोंट नो, सारी जानकारी लेके वहाँ पे करना है हमें। इमरजेंसी कंडीशंस होती है तो हम सारी कंडीशन नहीं देखते हैं और हम वहाँ पे विद्ध कर्म अग्निकर्म करते हैं। तत्र या सूक्ष्म शस्त्र विद्ध अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत, जहाँ पे एक फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो टीचर्स है पीजी स्टूडेंट को हम दे सकते हैं, ऐसा टॉपिक है यहाँ पे। तो स्नेहादि भी ही क्रिया योग ही न तथा लेपन ही अपनी यान्ति आशु व्याध शांति सम्यक सिरा वेदात, अथा तो ब्लड मोक्षणम अध्याय नहीं है, अथा तो सिरा व्याध विधि अध्याय व्याख्या में। सिरा कितने हैं? 700। वातज पित्तज कफज सर्व वह सिरा, अच्छा ऐसे हमारे सिरा वह स्रोतज बनाया गया है। अब देखिए ग्रंथ क्या कहता है, धमनश्च विशुद्धंति दुष्ट रक्तत्वाच आशय, सम्यक सिरा व्याध करोगे तो धमनी विशुद्ध होगी। तो सिरा दूर है, वातज पित्तज कफज सर्व वह सिरा, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिरा का व्याध करोगे धमनश्च विशुद्धंति, धमनी में मानद धमन दश धमन हृदय से निकलती है। तो देखिएगा दूर सिरा है, हृदय के नजदीक धमनी है, उसका वेदन करोगे धमनिश्च विशुद्धंति। दोष कौन से? वातज पित्तज कफज। सो पैनक्रियास से लेके हमें रक्तव स्रोतस लीवर के सारे विकार में
प्लीहा के विकार में हमें ग्रंथ में इधर उधर रक्तमोक्षण मिलता है, राइट साइड में करो, ये साइड में करो। तो ये जो टॉपिक है शिरावेद से धमनी शुद्ध करना, ये ग्रंथ में बताया गया है, उसी के अनुसार हमें करना होता है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा मुझे बताना है आज। एनाटॉमी पता होनी चाहिए, मर्म ज्ञान, सरफेस एनाटॉमी, शिरावेद, अग्निकर्म अध्याय, ये हमें मुखोगत होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? यहाँ पे लगता है कि सिर्फ मैं बैक को मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ करते समय कॉस्टल मार्जिन से लेके पूरी तरह से बैक की सरफेस एनाटॉमी हमें वहाँ देखनी होती है, और उसके बाद ही हमें पेशेंट को विद्ध कर्म के पॉइंट्स हम देख सकते हैं। सीधा प्रैक्टिकल के लिए जाता हूँ। विद्ध कर्म और अग्निकर्म के एक नियम 3 बार बताता हूँ। विद्ध कर्म के लिए स्थान निश्चिति फिक्स है, ग्रंथ में दिया है, नासाग्रे विद्यत नासा विकारे, कर्ण विकारे विदुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली या कर्णपाली समानता बताया गया है। अग्निकर्म में अत्यग्र शूले दहेत, नियम फिर से 2 बार बताऊंगा। ये क्षिप्र और वात रक्त क्या बताया गया है? पादस्य अंगुष्ठ अंगुले क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणंच। तो शरीर में 4 क्षिप्र मर्म है, वहां पे अगर मार लग गया तो क्या होगा? आक्षेपक होगा। आक्षेपक क्या है? वातज व्याधि है, शरीर में कन्वर्जन आ रहा है। तो इतना वात बढ़ा हुए व्याधि में हम वहां का वर्णन पढ़ेंगे तो क्षिप्र मर्म न उपरिष्टात् 2 अंगुले व्रीहिमृकेनम शिरावेदेत, क्षिप्र मर्म के 2 अंगुले ऊपर हमें वेदन कर्म बताया गया है ग्रंथ में। तो ये 2 मर्म 2 अंगुली ऊपर देखेंगे तो विसर्प, वात शोणित, विचर्चिका, पाददारी, ऐसे सर्व व्याधि में हमें यहाँ पे ऐसा वर्णन आया है। तो ये जगह कहाँ है? तो ये जगह यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व, डॉर्सल पेडालिस आर्टरी और मेटाटार्सल आर्टरी के वहाँ पे एनास्टोमोसिस होते हैं। तो क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली वेदन कर्म करेंगे तो क्या क्या ठीक होगा? इसके पहले वाली स्लाइड में बताया गया था, तो मैं देता हूँ कि वहाँ पे संस्रव्य असवेद स्वाप सादरुक्तोद भेदनम भंग संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्शनम कंप पारुष शोषिरे शोष स्पंदन वेष्टनम, पैर में कहीं पे भी हो वात रक्त जैसी संप्राप्ति हो, वहाँ पे हम 2 अंगुली वेदन कर्म क्षिप्र मर्म के ऊपर करते हैं। जानु संधि ऊपर अथवा चतुरंगुली, जानु संधि के ऊपर और नीचे चतुरंगुली गुरुद्रसी में बताया गया है, और विश्वाची में वही हमारी एल्बो जॉइंट के ऊपर नीचे बताया गया है। तो हमें परपेंडिकुलर करना होता है। गुरुद्रसी में वो विश्वाचाम 4 अंगुली, पेशेंट के 4 अंगुली हमारे नहीं। कितने समय लगता है देख सकते हो, 4 अंगुली ऊपर नीचे। गोकटेसर 98 ईयर्स का हाथ है, 2 सेकंड्स में विद्ध कर्म होता है, और पेशेंट को विश्वाची के लक्षण तुरंत कम मिलते हैं। वही जब गुरुद्रसी होती है तो गुरुद्रसी में भी जानु संधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुली बताया गया है। जानु संधि के नीचे और ऊपर 4 अंगुली बताया है। इसमें भी इतना डेप्थ है, जानु संधि के ऊपर जो है शक्ति है और नीचे जो है पिंडिका है। तो कफ वातज जब गुरुद्रसी होती है तो कफज लक्षण ज्यादा है तो ऊपर 4 अंगुली करना, और वातज वेदना जैसी लक्षण ज्यादा है तो नीचे फर्स्ट पॉइंट करना। इतना इसमें डेप्थ में जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जाएंगे। गुरुद्रसी पेशेंट चलता भी नहीं था, चलने को भी डिफिकल्ट था, बैठने को भी डिफिकल्ट था, मूव करने के लिए भी डिफिकल्ट है। और देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क बल्जिंग L2, L3, L4, 5 में ऐसे डिस्क बल्जिंग होती है। और जब पेशेंट उसके 2 दिन पहले ऐसा था कि वो सिर्फ उसको सपोर्ट ले सकता था। तो सिंपल गुरुद्रसी वेदन कर्म। अब गुरुद्रसी इज नॉट सायटिका एंड सायटिका इज नॉट गुरुद्रसी, लेकिन सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। गुरुद्रसी क्या है? स्पीक पूर्वा कटी पृष्ठ उरुजानो जंगम प्रदम वेदना, जो है हमारा पुष्पा चलता है ना, वो जो वेदना का क्रम है उसको गुरुद्रसी कहेंगे। तो सायटिका भी हो सकता है, या नी जॉइंट का पेन भी हो सकता है, या जो मसल स्टिफनेस भी हो सकता है। इस गुरुद्रसी गुरुद्रवत चलती थी गुरुद्रसी। तो ऐसे पेशेंट को बताया गया है कि हम ये गुरुद्रसाइटिका का पॉइंट जो कहते हैं कि एंटीरियर सुपर रिलैक्स स्पाइन से सैक्रल प्रोमोटरी, यहाँ से हम 30 एंगल निकालेंगे और टुवर्ड्स एम्बिलिकस, ऐसा वेदन कर्म रहेगा। और जानुस से ऊपरी और अधो चतुरंगुली 4 अंगुली हम वेदन कर्म करेंगे। ये हो गया गुरुद्रसी के विद्ध कर्म। लेकिन हमें एनाटॉमी भी बताती है कि वहाँ पे डिस्क बल्जिंग है, L3, L4, 5 पे यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, साइटिका नर्व निकल रही है, तो उसको भी हमें स्टिफनेस दूर करने के लिए कंडक्शन मेथड से हम अग्निकर्म करते हैं। तो अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, अग्नि जो है द्रव्य के आश्रय से दहन कर्म करता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के आश्रय बताए गए हैं। कैसे बताए गए? पिपल यजा शकृत गोदंत शरशलाका त्वगता नाम, इतर लोहा मांसगता नाम,
लोह में सुवर्ण श्रेष्ठ है, सुवर्ण रद्द है, इसलिए सुवर्ण शलाका का अग्निकर्म यहाँ पे हो रहा है। और ये अग्निकर्म के बाद हमें प्रेजेंटेशन क्या मिलता है, एक ही सेटिंग के बाद पेशेंट इज रेडी टू वॉक, 2 सेटिंग के बाद 3 डेज में पेशेंट इज रेडी टू डू हिज ऑल द जॉब्स। इतना इजी हमें पेशेंट में चेंजेस हमें मिलते हैं। विश्वाची प्रदूषेषु पाददहंतेषु स्थिरम विद्वा वात व्याधिवत उपाचरित। अब यहाँ पे जो हमें ट्रेपेजियस मसल्स है और उसको भी हमें विद्धकर्म 2-2 अंगुली पे बताया गया है। यहाँ पे पेशेंट को बताते समय हम विद्धकर्म कर रहे हैं, ये सुई आपको लगेगी, ये शल्यकर्म अनुशस्त्र में जाता है, शल्यकर्म में जाता है, तो आपको हर एक पेशेंट के प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे कंसेंट से लेके सारे हमें पेशेंट की लेनी ही चाहिए। जिह्वा रोगेशु दंत व्याधिशु चो अधो जिह्वायाम। ग्रंथ कभी भी ये नहीं कहता, ग्रंथ को विस्तार भय रहता है। जिह्वा रोग मैंने बता चुके हैं, सारे जिह्वा रोग में जिह्वा मूलेशु, जिह्वा मूल कहाँ है, अधो जिह्वायाम, जो हमारी लिंगुअल वेन है उसके 2 मिलीमीटर अंदर या बाहर हम वेदन कर्म करते हैं। और पेशेंट को जिह्वा रोगेशु दंत व्याधिशु चो, पेशेंट है, पेशेंट को टेस्ट नहीं थी, जैसे कोविड में पेशेंट को तकलीफ हो रही थी, हमने देखा था टेस्ट नहीं आ रही थी। सारे जिह्वा विकार में जहाँ पे मुखपाक सर्वस्वर ऐसे पित्तज कफज वातज व्याधि बताए गए, सारे इसमें हमें यहाँ पे उपयोग होता है। गंध अग्रहणे नासा रोगे विद्येत। सिंपल, नासा रोग कौन से, नासा का कर्म क्या है, सांस लेना, वो नहीं ले रहा है, नासा विकार अलग अलग बताए गए। गंध अग्रहणे नासा रोगे विद्येत। नासा रोगे नासाग्रे विद्येत, नासा के अग्र पे वेदन कर्म करना है, तो वहाँ पे प्रेस करके हम अर्धव्रीहि वेदन कर्म करते हैं। तो जिनको स्मेल नहीं आता है, आप देखिएगा शाम तक तुरंत पेशेंट को स्मेल आना शुरू हो जाता है, इतना फास्ट काम करता है। तो मैंने बताया आपने किया और रिजल्ट नहीं आया तो कफवातज संप्राप्ति ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आप ऊपर करके देख सकते हैं नाइजल पॉलिप हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो कफवातज व्याधि ऐसा कोई भी नहीं जो भल्ला तकम न हन्यात, तो यहाँ पे भल्ला तक का अग्निकर्म किया जाता है। भल्ला तक प्रेस करके वहाँ से तेल निकलता है, हमें 1 ड्रॉप तेल सफिशिएंट होता है। 1 ड्रॉप हम तेल निकाल के उसको कॉटन में लगा के सीधा सीधा वो पॉलिप पे 1 ड्रॉप हम तेल लगाते। तो देखिएगा अगर स्किन ऊपर की है तो ब्लिस्टर्स करता है, लेकिन म्यूकोजा पे भल्ला तक तकलीफ नहीं देता है, इसलिए वर्धमान भल्ला तक से हमारे यहाँ पे अलग अलग योग मिलते हैं, तो वहाँ पे भल्ला तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट बेनिफिशियल अग्निकर्म विद्धकर्म इन जनरल प्रैक्टिस, अंगुष्ठ मूल वेधन कर्म। तो देखिएगा यहाँ पे जो सिल्वर लिंग शादी के बाद पहनाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद ही यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, वो जहाँ पे टच होती है दैट इज अवर विद्धकर्म पॉइंट, जहाँ पे टच होती है, इसलिए शादी के बाद दिया जाता है। पहले क्या होता था, घर में खाते थे लोग, बाहर जाते थे बाथरूम टॉयलेट के लिए, तो बाहर जाते समय किसी को साथ में लेके जाना पड़ता था, तब तक यूरिन रिटेंशन होता था और वेग धरण से आज अभी देखा हमने एक सेशन कि मूत्र विकार होते हैं। तो अंग विपर्यात, लेफ्ट को स्टोन है राइट को करना है, राइट को स्टोन है लेफ्ट को करना है, अंग विपर्यात ऐसे दिया है। और वहाँ पे इसलिए सिल्वर रिंग पहनी जाती है, सोने की नहीं, क्योंकि सिल्वर शीत होता है, वो स्पर्श से वहाँ पे मूत्र विकार कम करने में हमें फायदेशीर होता है। एग्जैक्टली हम देखेंगे तो ये मीडियल लैटरल में बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम लाते हैं। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये जो फर्स्ट फोल्ड है और ये जो लैटरल लाइन है, इसका जो मिडल पॉइंट है, यहाँ पे वेधन कर्म किया जाता है। ये पॉइंट पे नहीं किया जाएगा, ये मिडियल पॉइंट है, यहाँ पे नहीं किया जाएगा, लैटरल साइड पे किया जाएगा, वहाँ पे भी विद्ध कर्म नहीं होगा, वो अंगुष्ठ मूल नहीं है, यही अंगुष्ठ मूल है। तो यहाँ पे वेधन कर्म करेंगे हम यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अंग विपर्यात, अंग विपर्यात मीन्स लेफ्ट को करेंगे तो राइट को फायदा होगा, राइट को करेंगे तो लेफ्ट को, ऐसा हमें वृद्धि में आया है। तो पेशेंट स्टोन लेके आते हैं, 15, 20, 40 mm तक पेशेंट बैठा है, उसको हम डिवाइड करते हैं, बहुत दर्द हो रहा है वातज, यूरिन बर्निंग है, वोमिटिंग हो रही है तो पित्तज, और बहुत दिनों से स्टोन है सर, मुझे 1 साल से 2 साल से कभी तकलीफ देता है नहीं देता है, या लार्ज स्टोन है तो कफज में जाता है। तो तीनों में भी विद्धकर्म काम करता है। जैसे आपने आज मूत्राघात की एक अवस्था आपने देखी है, स्ट्रिक्चर्स, सारे मूत्राघात में विद्धकर्म काम करता है। कैसे कैसे काम करता है बहुत डिटेल में है, लेकिन आज मुझे बहुत फास्ट भगाना है आप सब लोगों को, क्योंकि टाइम कम है। तो हनुविद्ध, हनु संधि, हनु विद्ध दोनों अलग अलग है। अपस्मारण में अनुसंधि मध्यगताम विद्धकर्म बताया है, और हनवे
हनुमास्थि पे यहाँ पे वेदन कर्म बताया गया है। तो डिस्फेजिया है या गीलन कष्टता है, जैसे गीलायु है, जैसे टॉन्सिलाइटिस सर ने अभी बताया था, तुंडेकरी है, उसमें आप यहाँ पे वेदन कर्म करके तुरंत आपको पेशेंट को रिजल्ट ला सकते हैं। मैं एक बताना चाहूँगा, कोई भी चिकित्सा जो है पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है, बस्ती भी अर्ध चिकित्सा है। तो रक्तमोक्षण भी अर्ध चिकित्सा बताई गई है। आपको इसको सारे चिकित्सा के साथ ये चिकित्सा आपको इंक्लूड करनी है। उदरशूल में जहाँ पे मैकबर्निस पॉइंट है वहाँ पे वेदन कर्म किया जाता है। इससे पेन तुरंत कम होता है, लेकिन अपेंडिक्स ठीक नहीं होगा। ठीक करने के लिए आपको सर्जरी या बाकी प्रोटोकॉल करने ही होगी, लेकिन पेन मैनेजमेंट के लिए ये बहुत काम में आता है। दूसरे अपेंडिकुलर पेन छोड़ के बाकी जो पेन है, पेरियम्बिकुलर पेन है, वहाँ पे हम अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली वेदन कर्म करते हैं विद द रिलेटेड टू माउथ। अभी हमने देखा टंग के देखे विद वेदन कर्म। पेशेंट है, दांत दुख रहे, जैसे कि आपने देखा अधोजिह्वायाम दंत व्याधिशु आया है, जिह्वा अधोजिह्वा में हम वेदन कर्म करेंगे तो नीचे लोअर डेंटल आर्क है वहाँ पे पेन कम होगा, लेकिन ऊपर की जो डेंटल आर्क है दंत व्याधिशु दंत शूले दंत मांसानी वेदित ऐसा वर्णन आया है। तो दंत मांस पे वेदन कर्म करेंगे। मेरे बाजू का डेंटिस्ट भाग चुका है, इतने टूथ पेन इंस्टेंटली पेन कम हो जाता है ऐसे पेशेंट में। अब पेन तो कम हो गया, तो वहाँ पे अगर पेन कम नहीं हुआ है, वहाँ पे क्रुमिज है, कफवात संप्राप्ति है, तो वहाँ पे आया है अग्निकर्म। अग्निकर्म बताते समय फिर से बताया गया है कि गोदंत शरशलाकत्वगता नाम इतर लोहा मांसगता नाम क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम। अस्थि पे अगर अग्निकर्म करना है, क्षौद्र तैल गुड़ स्नेह, तो स्नेह का अग्निकर्म यहाँ पे होगा। तो मधुच्छिष्ट जो है, मधुच्छिष्ट यानी मोम जो है, मोम वहाँ पे रखी है और मोम को हम शलासूर्ण शलाका से गर्म कर रहे हैं। अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, वो वहाँ पे पिघल जाएगा और वहाँ पे शूल कम करने के लिए काम में आ जाएगा, जो कफवात संप्राप्ति वाला है। तो शूल तो कम हो गया, वो डेंटल का वहाँ पे कैरिज पे क्या करना है, तो वहाँ पे फिर से सुश्रुत ने बताया है, वहाँ पे आप लाक्षा का पूर्ण करिएगा। लाक्षा रखिए, सिंपल ओपीडी बेस के ऊपर लाक्षा का अग्निकर्म कर रहे हैं। आप जाके पूरी तरह से डेंटल की चेयर लेके हरा कपड़ा डाल के पूरी तरह से माउथ वॉश करके सारी चिकित्सा कर सकते हो, लेकिन ओपीडी के बेस के ऊपर ये इतना ईजिली काम हम कर सकते हैं। अखरोट भी फूटेगा और दांत का वो नहीं निकलेगा, इतना वो कड़क बन जाता है। डेंटिस्ट का फोन आता है कि ये काला काला नहीं से कैसे निकालूं, मैं कभी नहीं बताता गर्म करके निकल जाएगा बोल के। तो इजीली है, तो हमें ये इजी हमें करने को मिलता है, सिंपल। क्लिनिक में कभी हो सके तो चिंचड़ में सारे हमारे टीचर्स को आमंत्रण है, दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे एक आधे घंटे के लिए आइएगा। क्यों? वहाँ से आपको आधे घंटे में कम से कम 300 बच्चों के ऊपर एट द एज ऑफ 1 डे टू 10 ईयर्स सारे बच्चों के विद्धकर्म सारे विकार में मिलेंगे, जिसमें से ये भी है कर्णपाली वेदित, कर्णपाली समन्तात और विदुर वर्म के ऊपर 1 अंगुली। किसमें? कर्ण बाधिरे कर्ण रोगे च। कर्ण बाधिरे, आप कॉकलियर इम्प्लांट जिनको बताया जाता है 15-15 लाख का खर्चा है। मैं कहता हूँ राइट कान का आप करवा लो, लेफ्ट कान का मैं करता हूँ। 1-1 साल 2-2 साल लगता है पेशेंट में, लेकिन 100% मैं नहीं कहीं कभी भी बोलता, लेकिन इसमें बहुत फायदा होता है, पेशेंट का ऑपरेटिव बच जाता है। पेनिस डिसऑर्डर, उपेक्षित पार्ट, जैसे हम सुबह से देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी में क्या क्या मिलता है, ऑलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और उससे ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ऐसे ही इसमें सारी चिकित्सा हो जाती है, सारे ग्रोथ से लेके वोमन विरेचन होता है। तो लोकली काम कौन करना है, क्योंकि टेस्टिस को भगवान में बाहर रखा है ना, तो उसके ऊपर सर्जरी शल्यकर्म का ही अधिकार आता है। वेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल है, तो शल्यकर्म ही करते हैं। तो अनुशस्त्र जो है वहाँ इतना फायदेशीर आता है। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आप एक विद्धकर्म करो, पेशेंट रात भर आपको ही सोच के बाकी काम करेगा, क्योंकि इतना फास्ट काम होता है इसमें। तो मुझे ये कहना है कि ये सुपर फास्ट चिकित्सा जैसा यहाँ पे काम करता है। तो इसमें और एक फैंटास्टिक टॉपिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जिसको कभी किसी ने हाथ लगाया है पता नहीं, लेकिन गोगटे सर गए लास्ट 30 साल से करते आ रहे हैं। न एतद मम, मैं उनका ही काम आगे कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, छोटी बच्ची है, सीपी जैसी आई है,
जब आई है लोगों का, पेरेंट्स का करना है, किसी का नहीं सुनती सर। इसको दिखता है लेकिन देखते नहीं, कान को सुनाई देता है, हमने ऑडियोमेट्री की, हमने सारी टेस्ट की, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता। सर जी ये गाना लगाया तो ये हिलती है, क्या है पता नहीं हमें, ये गाना लगाने के बाद ही हिलती है, ये पता नहीं मुझे। तो फटाफट 4 बोतल दो, पानी की बोतल किसी के पास है तो 1 मिल गई मुझे, 2 मिल गई, 3 मिल गई, बस 1 चाहिए बस। थैंक यू सर। सिंपल मैं बताता हूँ, टीचर लोग आप हमारे अपने स्टूडेंट को प्लीज़ ऐसा दीजिएगा टॉपिक। क्या बता रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जात कर्म संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे उत्पत्ति कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति पंचमहाभूत से है। और पंचमहाभूत कैसे है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्रा है। तो शब्द पहले आती है, स्पर्श रूप रस गंध। तो बच्चा पूरा टाइम जो है माँ के पेट में है, बाजू में पानी है, उसकी सारी इंद्रिय बंद है। पैदा होगा, नाल कट करेंगे, उसको पहले शब्द सुनाई देना चाहिए। अगर शब्द सुनाई नहीं दिया तो वो क्या बनेगा, वो स्पेशल चाइल्ड बन गया। इसलिए काश्यप संहिता में बच्चा पैदा हुआ, पहले बोला है कान के पीछे पत्थर बजाओ, करने अश्मनो संघटनम। उसके बाद बताया शब्द हो गया, स्पर्श के लिए क्या, तिल तेल ले लो, उसके परिमार्जन करो। रूप के लिए अंजन गालो, रस के लिए पानी तल मात्रा में नवलित लेना है और नवनीत उसको खिलाना है। उसके बाद क्या है, शब्द रूप रस गंधम माँ के पास ले लो, माँ की ऊर्जा मिलेगी, सारा हो जाएगी, जहाँ तक परिमर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों को ऑक्सीजन ही नहीं मिला, ऑक्सीजन ही नहीं मिला, वो बन गया सेरेब्रल पाल्सी, जिसको कहा जाता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। बच्चे को दिखता है, दिख नहीं पाता है, कान को सुनाई देता है लेकिन समझ नहीं पाता। तो पूरा जो उसके आवरण बंद हो चुके हैं। इंद्रिय कौन से है, तन्मात्रा के हिसाब से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, जिह्वा स्पर्श भी करती है, और गंध के लिए नाक। तो 5 इंद्रिय 4 का ग्रहण करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये चारों स्रोतों का संगम किसको बोला है, श्रृंगाटक मर्म को कहा गया। चत्वारी श्रृंगाटकानी ख चतुष्टय संगम है, चारों स्रोतों का संगम श्रृंगाटक है। श्रृंगाटक से वहन होगा शंख को, और शंख से कहाँ जाएगा, मन को। मन का स्थान क्या है, हृदय है मन का स्थान। इसीलिए उन्माद अपस्मार जब होता है तो क्या कहा जाता है कि बुद्धेः निवासम हृदयम प्रदुष्ट। बुद्धि का निवास ब्रेन नहीं है, बुद्धि का निवास हृदय बोला गया है। और वो प्रदुष्ट होने के बाद इंद्रिय जो है आवरण हो जाएंगे, और आपके बच्चों को दिख रहा है नहीं तो वो देख नहीं पाएंगे, आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, इधर उधर देखते रहेगा। इसका मॉडर्न के साथ इतना कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसीलिए क्या बोला गया है, भ्रू जो मन का स्थान है, जहाँ पे विषय लगना प्राण मर्म है, बाण लगने के बाद वायु प्रकोप होता है वहां पे, और उसके साथ शंख के लिए। तो इंद्रिय के आगे भ्रू मध्य, इंद्रिय के पीछे श्रृंगाटक और शंख। शंख से मन को समझ रहा है। ऐसी पैथोलॉजी में पहले भ्रू मध्य शंख को वेधन कर्म करो, उसके बाद क्या होगा, जो चल नहीं रही थी बच्ची, वो माइलस्टोन हमें 1-2 महीने में मिल जाते हैं। वो फिर से क्या होता है, वॉकिंग विद सपोर्ट मिल जाता है। फिर से क्या होता है, हमें वो वॉकिंग विदाउट सपोर्ट मिल जाती है। बच्ची है 7 साल की, जो हमें 7वें महीने में मिलना चाहिए, वो बाद में मिला क्योंकि इतने दिन बंदी थी। अब क्या हो रहा था, वो सिर्फ वो गाना नहीं सुन रही थी, वो पिताजी का भी सुनने लगी। और उन्होंने मुझे फोन किया, सर सब सुन रही है लेकिन ये जिद्दी है, वो गाना ही सुनती है और वो उसको फॉलो नहीं करती हम जो बताए। मैंने कहा चलो ठीक है, गाना यहाँ पे, ये डांस नहीं आ रहा था, उसको फॉलो नहीं कर रही थी। फॉलो करने का काम आंखों का है, तो नेत्र के विद्या कर्म और शंख का वेदन कर्म है, हमने ऐड किया उसमें। जब हमने ऐड किया तो उसने देखा, बाजू में देखा, हमें ये सीसीटीवी से हमें फुटेज मिला घर के, और वो जो जब देखा उसने तो वो डांसिंग करना छोड़ी नहीं रही थी, इतना फॉलो करना शुरू किया। उसके माता पिता बोले सर ये फॉलो करना शुरू गई है। अब वो स्कूल में हमने डाला है, ये सबको 2 साल लगे। अब स्कूल में डाला है, अच्छा, तो वो बात करने लगी जो कभी बात करने नहीं वाली थी। टाली बाद में मैं बता रहा हूँ, मुझे समय कम है। अच्छा, तो वो तो रंग खेलना सारा की थी, तो बोली थी ये लिख नहीं रही है,
लिखने का काम स्पर्श है, तो स्पर्श कहाँ से आता है? त्वचा से आता है। फिर से त्वचा को देखो, वायु जो है जहाँ पे मार लगने के बाद पूरे शरीर में कन्वर्जेंस होते हैं, वो स्थान क्षिप्र मर्म के ऊपर वेदन कर्म किया, हाथ काम करना शुरू हो गए। ब्रेन तो पहले ही काम करना शुरू किया था, लिखना शुरू की, लिखा। घर वाले बोल रहे सर ये याद नहीं रखती है, घर वाले बोल रहे ये याद नहीं रखती, इसको ध्यान नहीं रहता है। हमने कहा ठीक है, शंख भ्रू मध्य सारे इंद्रियों का कर्म दो इंद्रियों से काम करवाएंगे और इसको लर्निंग करेंगे। अलग अलग प्रकार से लर्निंग शुरू किया। 1 महीने पहले का वीडियो, इसको हो गए 4 साल। अब बोल रहे सर इसकी जिह्वा स्पष्ट नहीं है, बोल तो रही है, सुन तो रही है, ध्यान तो रही है। तो उसके पीछे हम काम कर रहे हैं। अगली बार जब प्रेजेंटेशन होगा एटकॉन 2020 में, ये बात करने वाली पूरी तरह से मिल जाएगी, क्योंकि अभी उसने अलग अलग शब्द पे काम शुरू किया है। जैसे तालवीय स्वर है, तालु पे वेदन कर्म, जिह्वा स्वर है, जिह्वा पे वेदन कर्म, ओष्ठ स्वर है, ओष्ठ के एंगल पे वेदन कर्म, कंठ स्वर है, कंठ पे वेदन कर्म। ऐसा सारा हमारे माहेश्वरी सूत्र जहाँ पे बताया ना, शंकर ने डमरू बजाए, हयवरट लन अंग यन मन गण शुरू हो गया है, तो वहां से हमें स्वर की उत्पत्ति करनी पड़ती है। दूसरी केस मिलती है ऑटिज्म की। क्या हो रहा है? बच्चे को दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सारी इंद्रिय कवर्ड है, लेकिन चालू है सारा, लेकिन समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या दिया है? फिर से शंख भ्रू मध्य, पहले शंख को करो क्योंकि इंद्रिय तो अच्छे है, सीपी में नहीं थे, सीपी में आवरण ज़्यादा था। अब बच्चा अच्छा पैदा हुआ है, 1.5 साल तक अच्छा था, लेकिन वो वैक्सीन की वजह से या कोई भी कारण या अकेला रहने की वजह से कुछ भी उसको ऑटिज्म पैदा हुआ। तो पहले शंख करो, फिर बाद में भ्रू मध्य करो। ऐसे करने के बाद फिर से किसका सुनता है? पिताजी का सुनता है। पिताजी का सुनने लगा, फिर से उसको सर्दी हो गई, आवरण बढ़ गया कफ का। फिर हमने अग्निकर्म स्टार्ट किया, वही जगह पे अग्निकर्म, कफवाज संप्राप्ति होगी तो अग्निकर्म करना है। और अग्निकर्म करने के बाद ये पटपटी बैक टू स्कूल। अभी तक कम से कम मोर देन 600 पेशेंट ऑटिज्म के नॉर्मल स्कूल में हमने डाले हैं। सेरेब्रल पाल्सी ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि चलने को नहीं आता है। सेरेब्रल पाल्सी एक क्षिप्र से लेके, क्योंकि यो पादाभ्याम न गच्छति सफक्क, तो फक्क के लिए चिकित्सा क्या है? गुद्रसी लेके विश्वाची तक सारे विद्या कर्म आएंगे। फिर क्या मिलेगा? 11 साल की है, स्टैंडिंग विद सपोर्ट। फिर क्या मिलेगा? कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए नेत्र शंख, शंख नेत्र, शंख नेत्र, नेत्र शंख, इसमें क्षिप्र, ऐसा अल्टरनेट हमें करना पड़ता है। फिर क्या मिलेगा? वॉकिंग के लिए जो भी मॉडर्न का चाहिए हमें कर सकते हैं, लेकिन विद्या कर्म इज अ पुश ट्रीटमेंट, हमें वहाँ पे फायदा देती है। और ऐसे पेशेंट में हम उसको बैक टू द नॉर्मल लाते हैं। एक सेरेब्रल पाल्सी का शादी हमने लास्ट साल करवाई है नॉर्मल लड़की के साथ, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर आयुर्वेदा। हमने ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो हमारे पास बच्चे आते हैं छोटे से। अब नेत्र विकार में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ शंख, क्षिप्र, क्षिप्र शंख, ऐसे बहुत सारे मैंने अल्टरनेटिव किए है। इसके पहले मैं बताऊंगा, देखिएगा अभिसंधाधिमंत, कोई इसको ग्लाकोमा बोलेगा, कोई कंजक्टिविटिस बोलेगा, मैं इसको सिर्फ अभिसंधाधिमंत बोलूंगा। क्या दिया है? उपनासिका ललाटम अपांगम वा, ग्रंथ में दिया है। वही ग्रंथ में क्या बताया गया है? देखिएगा, हाँ, उपनासिका ललाट अपांगम वाम, वहीं पे क्या बताया गया है? अपांगम ललाटम अपांगम उपनासिका ललाटा। यूएलए सीक्वेंस बदला है, दोष बदल गए, मंडल बदल गए, पटल बदले, सीक्वेंस बदल गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? पुटपा के बाद रक्तस्रावन करना है या रक्तस्रावन के बाद उपनाह करना है, आगे पीछे क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट करके हमें चिकित्सा करनी होती है, जो ग्रंथ में दिया है वो फॉलो करना होता है। ये भी पता होना चाहिए वैद्य है इतने ही हम वेदन कर्म से ठीक करते हैं, जो नहीं है वैद्य उसके पीछे क्यों जाना है। तो वैद्य जो है, तो पेशेंट आते हैं नेत्र विकार के, तो वहां पे हम वेदन कर्म शुरू करते हैं। बेसिक वेदन कर्म इन नेत्र विकार इज दिस। आपको अगर कुछ पता नहीं है तो जो यहाँ पे दिया है ग्रंथ में वर्णन क्या दिया है? सूची पे न पच्छति, सुई का छिद्र दो धागा डालते समय नहीं दिख रहा है तो समझ लो आप प्रथम पटल में जा रहे हो। अव्यक्तानि रूपानि पश्यन्ति, चश्मा छोड़ दो बाजू में, चश्मा निकल के देखो, अव्यक्त रूप है।
आदमी दिख रहा है लेकिन वो कान नाक ढका हुआ दिख रहा है तो द्वितीय पटल में जाता है। ऊपर है नीचे दिख रहा है, नीचे है ऊपर दिख रहा है, दूर है नजदीक दिख रहा है, नजदीक है दूर है, तृतीय पटल में जा रहा है। तो इसके हिसाब से चिकित्सा करो तो आपके ये सारे चश्मे यहाँ से वहां तक बैठे हुए मैं कम करके दे सकता हूँ। सिर्फ इतना है कि फॉलो करो। किसी ने अभी तक 40 तर्पण किए ही नहीं है तो पता ही नहीं है आपको ये तर्पण से ठीक होता है, वेदन कर्म से ठीक होता है। तो सिंपल पेशेंट आते हैं, जैसे कि सिंपल अर्जुन है, सब कंजक्टाइल हिमोरेज है, पेशेंट का देखेंगे तो पूरी तरह से भर गया है। वेदन कर्म प्रथम शुक्लगत विकार है, मंडल से दूसरा मंडल में है तो सिंपल है, भ्रूमध्य अपांग और भ्रूपुच्छ यहाँ पे वेदन कर्म दिया है हमारे डल्लन ने, तो वहाँ पे वेदन कर्म करेंगे। पेशेंट एंटीबायोटिक ड्रॉप लेने के लिए जाएगा, एंटीबायोटिक ड्रॉप लेके आएगा, आज डालेगा, उधर डालेगा, 7 दिन डालेगा, उसके पहले आपको पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पिताजी सुबह किया, शाम तक इरिटेशन से लेके सारी चिकित्साएं कम हो जाती है, क्योंकि स्त्रोतस छोटा है। देखिएगा, गुदा बस्ती देनी है, मात्रा कितनी है, 900 ml तक जाती है। उत्तर बस्ती देनी है, आपने आप भी 900 ml देखा नहीं, मात्रा कम है, स्त्रोतस छोटा हो गया, मात्रा छोटी होगी। नेत्र बहुत छोटा है स्त्रोतस, इसलिए विद्या कर्म के बाद रक्ताने की मात्रा 64 तोला कभी नहीं मिलेगी आपको, ड्रॉप वाइज ही मिलेगी। कभी कभी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सीरा वातज सिरा में वायु मिलेगा, दिखेगा नहीं। पित्तज में पित्त दिखेगा या रक्त दिखेगा, कफज में तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए हमें सिरा व देखे करना है। तो मुझे टाइम समय समाप्त करने के लिए आया है। 1-2 केस बता के मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। छोटी बच्ची है जिसको दिख नहीं रहा था, हम ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू आय विद्या करने के बाद उसको परसेप्शन ऑफ लाइट शुरू होगा। पहली बार वो आँख देखने लगी और उसके बाद कंप्लीट विद्यन कर्म जो छोटे छोटे सुइयाँ भी उठाती थी। तो मैं सीधा आगे जाता हूँ। जो चेंजेस हमें ऐसे मिलते हैं, तालु वेदन कर्म करते हैं, सीधा अग्निकर्म की तरफ जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे में अग्निकर्म, गुरुदर्शी जैसे हमें लक्षण मिलते हैं, उसके बाद हम पॉइंट देख के, जैसे अभी सुबह बताया मैंने, अत्यग्रशूल्य दहेत, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेदना हो वहाँ पे दहन कर्म करते हैं। कॅल्केनियस स्पर जो है यहाँ पे ज्यावेळेस लक्षण असतं, मृतिका शलाका से अग्निकर्म करते हैं। अत्यग्रशूल्य दहेत, वहाँ पे कागज लग के अग्निकर्म किया जाता है, बाद में उस पर कम होते जाता है। कॉर्न में जैसे अभी सुबह देखा, ये कॉर्न है, कदर बोलेंगे कौन बोलेंगे वो हम बाद में बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्न में अग्निकर्म बताया गया है, कदर में भी अग्निकर्म बताया गया है। निकल जाए। फ्रोजन शोल्डर, तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगत नाम, गुड़ का अग्निकर्म होगा, गुड़ लिया है सर ने, और वहाँ पे अग्निकर्म अंशयो अंतरे, अंशयो अंतरे मीन्स 1 मिनट में बताता हूँ, मुझे सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं मेरे। अंशयो अंतरे यहाँ पे अग्निकर्म होगा, डायबिटिक पेशेंट में काम में आता है। यही जो अग्निकर्म है वहाँ पे हम व्रण की चिकित्सा करते हैं, यष्टि मधु घृत लगाते हैं, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट को वुंड हो सकती है। तो वलय शलाका का अग्निकर्म है, वलय शलाका है, वहाँ पे रिड्यूस करके वहाँ पे अग्निकर्म करते हैं, लेकिन इसके पीछे नहीं जाता क्योंकि सर्जरी का पार्ट है। जिनको सर्जरी नहीं चाहिए, जो पीछे लगी, उनके लिए ही करता हूँ, लेकिन ये सर्जरी ही करना चाहिए यहाँ पे। कॉस्मेटिक अग्निकर्म सब लोगों को पता है, जो नहीं चाहिए हमें उच्छेद वाला पार्ट है, उसको हम अग्निकर्म से तुरंत वो निकाल देते हैं। कामला है, ये सबको पता होना चाहिए, कामला बड़ा है, जो कामला कहीं से भी ट्रीट नहीं हो रही है, सिर्फ बहुपित्तर कामला में होता है। हरिद्रा का अग्निकर्म बताया गया है, हरिद्रा का अग्निकर्म वहाँ पे हम करते हैं, तो पेशेंट का पर डे 2 से बिलिरुबिन कम होता है, जिसकी संप्राप्ति न असमान विनिश्चय, ऐसा सूत्र संहिता बोलते हैं। टकले वाले बहुत पेशेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। हमारे रात में 10-12 टकलों की गैंग आती है। बिफोर ट्रीटमेंट विद्या कर्म, ये पता नहीं था कैसे करना है, बाद में यूट्यूब पे आप देख सकती है आफ्टर 4 मंथ्स। तो एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सलिस टोटलिस कहीं भी जाओ, 10-12 पंचकर्म करो, पर रिजल्ट नहीं मिलते। ये पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। परफेक्शन है, परफेक्शन ये देख लीजिएगा, विद्या कर्म 6 ही सीटिंग होगा, सर के कहीं के भी बाल जाए, यही विद्या कर्म हम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 6 पॉइंट्स सारा देख लिया, सारा रिसर्च हो चुका है, सारे पेपर हो चुके हैं। ये 6 पॉइंट करोगे एक्यूरेटली। एक्यूरेसी कैसे लाना है, यूट्यूब पे सारे वीडियोस मौजूद है, वो मिल जाएंगे। केस, ये छोटी उम्र 70 साल आ गए, एक बार प्रैक्टिस इनकी, सारे फिल्म स्टार आते हैं, बहुत सारा काम होता है, इसके पीछे लगना है। कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी हो, फोन करो। धन्यवाद।
Thank you so much, sir. Now I request our chairperson, Dr. Digambar Dipankar, sir, to please present his expert views within 1 minute. We must appreciate the efforts taken by Vaidya Chandrasekhar. Kindly give him a round of applause. And actually, he is doing very good work since many years. We are practicing both in a Chinswad area, so I know about him. And the pioneer of Vidya Karma is Susrut, and his legacy is taken forward by Gokte sir and now Vaidya Chandrasekhar. So benefit of Vidya Karma is it requires only a needle, or Agni Karma you requires only a shalaka. So minimum shastra requirement, this is the most important benefit. Also it is a very cost effective. The probable mechanism of action of Vidya Karma, it may releases endorphin for the pain management. This is the hypothesis. But according to Ayurveda, we can say it may causes the pacification of Vata dosha, it may causes Rakta Shuddhi, and it may also causes pacification Kapha and Pitta dosha. That's why it gives instant relief to the patients. So after the watching his session, he shows the miraculous results of Vidya Karma and Agni Karma. Maybe all the Vaidyas will incorporate this Vidya Karma and Agni Karma, I hope. And thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Pramod Khobdagade, sir, who is Secretary of ATA Maharashtra, to please come on dais. And please felicitate our speaker, Dr. Chandrakumar Deshmukh, sir. Now I request Dr. Pradeep Kumar Zondhale, sir, to please come on dais. And please felicitate our chairperson, Dr. Digambar Dipankar, sir. I also request, sir, to please felicitate our co-chairperson, Dr. Praveen Sawant, sir. Now I request, sir, to please felicitate our next co-chairperson, Dr. Madhavi Mahajan, ma'am. I also request Zondhale sir to felicitate coordinator Dr. Priyanka Shinde madam, Associate Professor, Department of Rachna Sharir, BSDT, Ayurved Mahavidyalaya.